مجھے عراق آئے ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ مجھے یہاں ایک اچھی جاب آفر ہوئی تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اپنے شہر کانپور کے بجائے یہاں کام کرنے کے لیے سوچا۔ لیکن سارا مسئلہ میرے رہنے کا تھا۔ یہاں پر رہنا بہت ہی مہنگا پڑتا تھا۔ اگر میں اپنے رہنے کا انتظام اپنے خرچ سے کرتا تو کانپور کچھ بھی نہیں بھیج سکتا تھا۔ میری ساری تنخواہ شاید عراق کے خرچوں میں ہی نکل جاتی۔ اس لیے میں ایک سستی جگہ ڈھونڈنے کے چکر میں تھا کہ جب ہی میرے آفس کے مینیجر نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ کہنے لگا، ہمارا بہت بڑا گھر ہے، وہاں پر ایک جگہ بالکل خالی ہے، ہم تمہیں وہ کرائے پر دے دیں گے اور اس کا کرایہ بھی بہت کم لیں گے۔ یہ سن کر تو میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ پیسے اس مینیجر کو ایڈوانس دے دیے اور اس کے گھر اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ کافی بڑا سا بنگلہ تھا، وہاں ایک چھوٹا سا لان تھا اور ایک بیٹھک الگ ہی ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ گھر سے اس کا بالکل کوئی تعلق نہ تھا۔ گھر کے پچھلے طرف ایک بہت بڑا استبل بھی تھا جہاں پر اچھی نسل کے گھوڑے پالے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا سامان اس کمرے میں رکھا۔ کھانے پینے کی مجھے کوئی بھی فکر نہ تھی، سب کچھ اس مینیجر کی ذمہ داری تھی۔ میں تو کافی سکون سے ہو گیا تھا۔ مجھے گھر جیسا ماحول بھی مل رہا تھا اور وہ بھی بہت کم پیسوں میں۔ اور پھر اس کمرے کا دروازہ کھولتے ہی باہر ہی خوبصورت لان دیکھ کر طبیعت باغ ہو جاتی تھی۔ شام کی چائے کے بعد میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر ہی آفس کا کچھ کام اپنے لیپ ٹاپ پر کرنے لگا۔ کمرے سے پیچھے کا دروازہ شیشے کا تھا اور پورے کمرے میں جگہ جگہ کھڑکیاں لگی ہوئی تھی جس سے کہ پورا لان نظر آتا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے بس کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ان کچھ دنوں میں مجھے معلوم نہ تھا کہ میں مینیجر کے گھر میں رہتا کون کون ہے۔ ایک تو میں نے کوئی خاص دھیان نہ دیا تھا اور دوسرا میں نے ابھی تک کسی کو لان میں ٹہلتے یا اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا کہ مجھے اندازہ ہوتا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اگلے دن چھٹی تھی، اس لیے میں لیپ ٹاپ پر کافی دیر اپنے کام میں بزی رہا۔ میں نے کھڑکیاں ساری کھول رکھی تھی، تازہ ہوا دل کو سکون پہنچا رہی تھی کہ جب مجھے کمرے کے باہر کچھ آہٹ کی آواز آئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے چاروں طرف سناٹا تھا، اس لیے ذرا سی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک لڑکی مجھے لان میں نظر آئی۔ دیکھنے میں تو وہ لڑکی ہی لگ رہی تھی جو ٹراؤزر اور کرتی میں تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے دیکھا تھا۔ پہلے اس لڑکی نے عجیب نظروں سے پورے لان کو دیکھا۔ مجھے یہ بات اس کی بڑی عجیب سی لگی تھی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرے کمرے میں صرف نائٹ بلب ہی جل رہا تھا۔ میں سگریٹ کا شوقین تھا، اس لیے اس وقت سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا، اس لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر تک آ رہے تھے۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی سفید رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہوگی۔ لیکن رات کے اس وقت وہ لان میں کھڑی کیا تاکا جھاکا کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے پورے لان میں نظر دوڑائی۔ شکر تھا کہ اس نے کمرے کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ میں اسے نظر آ جاتا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی اس بنگلے کی پچھلی طرف جانے لگی جہاں پر گھوڑوں کا استبل تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی دیکھی تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت یہ لڑکی چوری چپکے دوسری طرف استبل میں کیا کرنے جا رہی ہے، وہ بھی ایسے چوروں کی طرح، کیونکہ اس نے پورے لان میں ایسے ہی دیکھا تھا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ چھپ کر پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے جانے لگا۔ وہ اپنے حلیے سے کہیں سے مجھے کوئی چور یا کوئی نوکرانی نہیں لگ رہی تھی، شاید مینیجر کی بیٹی تھی یا پھر کوئی اور۔ مینیجر جب تقریباً 50 یا 55 کے لگ بھگ عمر کا تھا اور یہ لڑکی مجھے دیکھنے میں تو 20 یا 21 سے اوپر کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں سگریٹ پی رہا تھا اور اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ رات کے اس وقت وہ پیچھے استبل میں کیا کرنے گئی تھی۔ وہاں تو اس وقت گھوڑے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے بھی مینیجر نے جسے رکھا تھا وہ بھی رات ہوتے ہی چلا جاتا تھا۔ صبح میری تو چھٹی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ لڑکی واپس کب آتی ہے۔ میں سگریٹ پیتا رہا اور کھڑکی پر کھڑا رہا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ اگر آئی تو سامنے اس کی نظر بیٹھک پر ہی پڑے گی اور وہ مجھے دیکھ لے گی۔ میں نے نائٹ بلب بند کر دیا۔ اب بیٹھک میں دوبارہ اندھیرا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بیت چکے تھے، وہ لڑکی واپس نہیں آئی تھی۔ ان 3 گھنٹوں میں میرا دل کئی بار یہ سوال اٹھانے لگا کہ کیوں نہ میں چوری چھپے پیچھے جا کر دیکھوں کہ وہ استبل میں کرتی کیا ہے۔ لیکن پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کیا سوچے گی کہ میں کیوں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ یہ ایک غلط بات تھی۔ بہرحال 4 گھنٹے بعد جب ہلکی پھلکی سی روشنی آسمان پر پھیلنے لگی
तो वो लड़की लॉन में आई थी, लेकिन इसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलती सिगरेट गिरी थी। बुरी तरह से वो घबराई हुई थी, चेहरे से पसीना साफ कर रही थी, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वह यूं हाँप रही थी जैसे न जाने ऐसा क्या करके आई हो। इसका पूरा कुर्ती और ट्राउजर पसीने से गीला हो चुका था। इसने दोबारा से लॉन में एक नजर घुमाई और फिर जल्दी से घर के अंदरूनी तरफ चली गई। इसकी अजीब सी हालत होती देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म लिया था, लेकिन मैंने खुद को झटका कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आंख दरवाजा खटकने पर खुली थी। मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोल कर देखा। वो वही नौकरानी थी जो मेरे लिए नाश्ता लेकर आती थी। आज भी इसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। इसने नाश्ते की ट्रे रख दी। कहने लगी, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सोए थे? कब से दरवाजा पीट रही हूँ। मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहूं कि लाट साहब कब उठेंगे और कब नाश्ता लेंगे? नौकरानी के तेवर काफी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आई एम सॉरी। दरअसल रात को काम ज्यादा था, इसलिए देर से सोया था। वो कहने लगी, आइंदा ऐसी देर की तो फिर से भूखे ही रहना। इससे पहले कि वो जाती मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा नौकरानी को तो पता होगा कि वो लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जब उसने मुझे बताया, मैं तो दंग सा रह गया था। मैंने कहा कि मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं? वो कहने लगी, मुझे क्या पता। मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, वो इस घर में रहते हैं, जाहिर है उनके कोई बीवी बच्चे भी होंगे। वो नौकरानी कहने लगी, ये मैनेजर का घर नहीं है। ये कहकर वो बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था, ये क्या चक्कर है? अगर ये घर मैनेजर का नहीं है तो उसने मुझे यहाँ पर किस हिसाब से रखा है, और वो खुद इस घर में क्यों रह रहा है? ये किसका घर है? मुझे तो ये ख्याल सताने लगा था कि कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज में फंसवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। जब वो मैनेजर मुझे बैठक में आते हुए दिखाई दिया, मुझे कहने लगा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैं चाह रहा था कि आज हम साइट का काम भी कर लेते हैं। तुमने नक्शा तो बना लिया है ना? मैं एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल, मार्केट वगैरह बनानी थी। मैं और वो जैसे और बहुत से इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूं, इसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं इस मैनेजर के साथ वो जगह देखने चला गया जहाँ पर हमें काम करना था। वही मैंने बातों बातों में मैनेजर से पूछा कि ये घर किसका है, तो कहने लगा, ये मेरे सेठ का घर है, लेकिन मैं उनका काबिल और भरोसेदार नौकर हूँ, इसलिए जब भी वो मुल्क से बाहर होते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वो लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपकी बीवी बच्चे भी यहीं रहते हैं? वो कहने लगा, कौन सी बीवी बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। यह सुनकर मुझे और हैरत हुई थी। कहने लगे, मेरे बॉस की एक बेटी है जो यहाँ रहती है। क्योंकि मैं बचपन से सारे इंतजाम संभाल रहा हूँ, इसलिए वो मुझे चाचा चाचा कहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरा एक मसला तो हल हो गया था। वो लड़की बॉस की बेटी थी, लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में उलझ रही थी कि वह रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती थी। पहले मैंने सोचा कि ये भी मैं मैनेजर से पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने कुछ भी न कहा, क्योंकि जिस तरह से वो लड़की जा रही थी लग रहा था कि चोरी छुपे ही जाती हो। लेकिन एक सवाल और मुझे तंग करने लगा कि जब वह पूरे घर की मालकिन थी तो उसे किस बात का डर था? वह क्यों छुप छुप कर पीछे से अस्तबल में जाती थी? वह तो खुलेआम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती थी। हम लोग शाम के 7-8 बजे ही वापस आए थे। मैंने खाना खाया और रात की कॉफी मैंने अपनी बैठक में बना ली थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर था। मैंने कॉफी बनाई और उस लड़की का इंतजार करने लगा। हालांकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की का इंतजार था। मुझे लगा जैसे आज वो फिर आएगी, और वही हुआ था। रात के ठीक 2 बजे वो लड़की फिर से यूं ही ट्राउजर और कुर्ती में बाहर आई थी, और फिर पूरे लॉन को उसने ऐसे देखा जैसे ये जानना चाह रही हो कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो पीछे अस्तबल की तरफ चली गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो मैं इसका पीछा करके देख लूं कि आखिर ये पीछे अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मैनेजर मेरी अच्छी खासी खिंचाई करेगा। मैंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए कि वो क्या करती है और क्या नहीं। बॉस की बेटी है, अगर इसने मुझे देख लिया या मेरी शिकायत अपने बाबा से लगा दी तो मुझे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही सोचा कि एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। मैं उठकर जैसे ही बाहर जाने लगा तो मैनेजर को तेजी से लॉन में आते देखकर वहीं चौंक कर रुक गया। इसने पूरे लॉन में नजरें घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में ही वो इस लड़की का हाथ थामे इसे लेकर आ रहा था और वो लड़की इसे अपना हाथ छुड़वा रही थी
और वो मैनेजर इसे घूर घूर कर कह रहा था कि आइंदा अगर वो रात के वक्त पीछे गई तो वो उसकी शिकायत इसके बाप को लगा देगा। वो लड़की खामोश थी। मैं और उलझन का शिकार हुआ था। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैंने लाइट बंद की और सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वो लड़की लॉन में ही थी। लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वो अपने ही काम में मगन थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसलिए अपने कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं लॉन में आ गया और इस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को इसने तोड़कर जब हाथों से उसका गुलदस्ता सा पकड़ लिया तो एकदम से ही पीछे पलटी थी। मैं इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए मुझसे टकराते टकराते बची थी। मुझे हैरत से देखने लगी, फिर मुझे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, आपका राजदार। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई थी। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं इस बैठक में किराए पर रहता हूँ, आपके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। यह सुनकर इसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही खत्म हुई थी। फिर कहने लगी, ओह याद आया, मैनेजर साहब ने बताया था मुझे आपके बारे में। वैसे भी मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसलिए बातों का फन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा कि इस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या इसका पीछा करूंगा, क्या देखूंगा ये पीछे क्या करने जाती है। बेहतर ये है कि इससे दोस्ती ही कर लूं, ये मुझे खुद ब खुद ही सब कुछ बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरे होश उड़ा के रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बॉस की बेटी है, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें तो। मैंने जानबूझकर बात छेड़ी थी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ। ठीक है, मैं जब फ्री होगी तो आपके पास आ जाया करूंगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। यहीं से हमारी बातों का सिलसिला चल निकला था। अक्सर वो शाम के वक्त ही मेरे कमरे में आ जाती थी। मुझसे मेरे कानपुर के बारे में पूछती, कभी इधर उधर की बातें करती रहती, कभी कुछ पूछती कभी कुछ। काफी बातूनी किस्म की लड़की थी। बहुत जल्द मुझसे फ्री हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने इससे ये पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग आकर गुजरे थे। कहने लगी, मुझे घोड़ों से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, जब ही तो रात को आप अस्तबल में जाती हैं। इसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नजर रखते हो। वो इस कदर गुस्से में थी कि मैं तो बौखला कर रह गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही रात को आंख खुली थी तो मैंने तुम्हें पीछे अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वो फौरन से खड़ी हो चुकी थी। गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कहकर पछताया था। कहने लगी, आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम इतना बुरा मान जाओ। लेकिन इस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं। फौरन से गुस्से से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया था कि कहीं वो मेरी शिकायत बॉस से ही न लगा दे। इस बार मैंने रात को कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। रात को मुझे आहटों की आवाज तो आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर मुझे बेचैन कर रहा था, वो ये कि वह पीछे करने क्या चाहती है। लेकिन इससे ये बात पूछकर मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अब तो वो मुझसे चौकन्नी रहने लगी थी। इसके बाद अगले ही दिन ऑफिस से वापस आने के बाद मैं अपने कमरे में बढ़ गया। मैं सोच चुका था कि मैं इस लड़की से दोस्ती कर लूंगा। मुझे वाकई इसके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही इससे कुछ पूछना चाहिए था। मैं इस इरादे से जब घर में दाखिल हुआ, नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो कहने लगी कि वो पीछे अस्तबल में ही है, वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं सोच रहा था कि मैं अस्तबल जाऊं या ना जाऊं। बहरहाल मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ इस बंगले की पिछली तरफ जाने लगा, जहाँ घोड़े का अस्तबल था। जब मैं इस अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, इस पर पानी डाल रही थी और घोड़ा उसके काफी करीब था। मैं हैरत में पड़ गया था कि वो मालिक की बेटी होकर घोड़े को खुद क्यों नहला रही है। हालांकि वहाँ पहले से घोड़े की देखभाल के लिए एक नौकर मौजूद था। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अजीब नजरों से घूरा था। मैं इसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई आपके मामले में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं था, आप मुझे माफ कर दें। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करें। मैंने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं वाकई ही बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कहने लगी कि आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाप से न लगा दूं और कहीं वो आपको नौकरी से न निकाल दे। बस आप इसलिए मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। बात इसकी बिल्कुल सही थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं वो अपने बाप से कुछ कह ना दे। इसके मुंह से सुनकर मैंने फौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का क्या है, वो तो मुझे और भी मिल जाएगी।
लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ किया। मैंने कहा, प्लीज आप मुझसे वैसे ही बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले करती थी। कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस शख्स से दुख जाए मैं दोबारा उससे बात नहीं करती। ये कहकर वह दोबारा घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहां से वापस आ गया। वो 3 महीने में तो मैंने दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की कि वो लड़की पीछे अस्तबल में जाती है, लेकिन एक बार मैंने देखा कि वो बड़ी बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ गई थी, भागते हुए। ये देखकर मुझे जरा परेशानी होने लगी। मैंने कहा, अब तो ये बात पुरानी हो गई है, वह मुझ पर फिर से भरोसा करने लगी है, अब वो मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे ये देखना था कि वो पीछे जाती क्यों है, और वो भी रात के इस वक्त। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा कि मेरे पाँव लड़की की सिसकियों की आवाज सुनकर वही थम से गए थे। वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? मैंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैंने अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिए और अपने कमरे में वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा भी बंद कर लिया। ये क्या था जो मैं देख कर आ रहा था? मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की रात के इस वक्त पीछे अस्तबल में जाकर ये काम भी कर सकती है। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खटका था। मैं तो पूरे का पूरा हैरान रह गया था और मेरी जान उस वक्त निकली जब वो लड़की मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर हुआ कहीं वो मुझे देख ना चुकी हो। मेरे कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कुछ देर बाद उसका दरवाजा खोला और आंखों को यूं मसला जैसे कि मैं नींद से जागा हूँ। वो अंदर आई और कहने लगी, तुम फिर मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, मैं भला आपका क्यों पीछा करूंगा। कहने लगी, मुझे लगता है वो मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया है। मुझसे कहने लगी कि मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है। ये बात मैंने हैरत से सुनी थी। कहने लगी कि मैं इससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि इसने मेरे बाप का सारा काम अपने काबू में कर रखा है और मैं अभी सिर्फ 12वीं क्लास में हूँ। जब तक मैं खुद बिजनेस संभालने जितनी नहीं हो जाती, इसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे अंदर ही अंदर मेरे बाप की हर चीज पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने बाप से बात करें। ये बात सुनकर वो आंसू बहाने लगी थी। कहने लगी कि तुम सच नहीं जानते। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं और तुम्हें सच बता दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। कुछ देर पहले मैंने इसे घोड़े के अस्तबल में जाते देखा था। इसने अपने घोड़े को खोलकर इसे एक कोने की तरफ बांधकर नीचे बैठ गई, लेकिन वहां से मुझे सिर्फ घोड़ा ही नजर आ रहा था क्योंकि नीचे लकड़ी का जाला था। इसके बाद वो घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया कि न जाने वो लड़की क्या कर रही थी। यही देखकर मैं वापस पलट आया था, लेकिन अब वो लड़की खुद मुझे वहां लेकर जा रही थी। मैं ये नहीं जानता था कि मसला क्या है। मैं इस लड़की के बारे में बुरा सोच नहीं सकता था क्योंकि वह ऐसी थी नहीं, लेकिन न जाने वो उस वक्त क्या कर रही थी। लेकिन ये राज भी मेरे सामने खुल गया था। वो मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ ले गई। वहां इसने घोड़ा पहले से ही बांधा हुआ था और वो घोड़ा आंसू बहा रहा था, थोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा कि इसे क्या हुआ है? कहने लगी, यहाँ मेरे बाबा की कब्र है। यह सुनकर तो मैं चुप सा रह गया था। मैंने कहा, आपके बाबा मर चुके हैं? लेकिन वो मैनेजर तो। वो कहने लगी, अगर इस मैनेजर को ये खबर हो गई कि मेरे बाबा मर चुके हैं तो वो हर चीज अपने नाम कर लेगा। मैंने अपने बाबा की मौत का किसी को नहीं बताया। वो रात के टाइम ही मर गए थे। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने बाबा को यहाँ दफना दिया था। बस ये घोड़े जानते हैं कि मेरे बाबा मर चुके हैं। मैंने इस मैनेजर से यही कहा है कि मेरे बाबा बाहर मुल्क गए हैं। मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार है, जब मैं इसके हाथ से सब कुछ ले लूंगी। लेकिन ये बार बार मुझे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर साइन करने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मामलात मेरे हवाले कर दें। अपने बाबा का खौफ दिला देती तो ये चुप हो जाता। मैं यहाँ पर अपने बाबा की खबर पर आती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ और ये घोड़े मेरे बाप से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी खबर पर आते ही ये रोने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने इस लड़की की मदद यूं की थी कि इससे शादी कर ली और उसके कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों।